السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر اضافہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی تو اب ان کے اندر اضافہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کمی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، لیکن اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے مولوی حضرات آگے سے کہتے ہیں جی لو ہم 4 صورتیں اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے، یعنی کہ اگر وہ کل 40 ساتہ کر رہے ہیں یا ختم تے بیٹھے یعنی 4 صورتیں پڑھ لیاں حرج کی ہے۔ ناظرین، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ تو خیر ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں کہ یقین مانیے اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ لیکن دکھ اس چیز ہوتا ہے کہ لوگ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بھی وہ ایسے لوگوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں جو دین کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو جو ہم دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے بابا جی الیاس قادری، اور ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کھیرا بیچارا اتنا پیارا تھا، اور اس کو پیارا کون نہیں بولے، سبز سبز ہے۔ اب اس بے ضرر کھیرے کو اس کو بس لگے رہتے ہیں تو چھیلتے رہتے ہیں، اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ ان کی عجیب منطق الٹی ہے کہ یہی سبز رنگ سر پہ چڑھاتے ہیں، یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا ہی نہیں کانپتا، پھینک دے۔ بابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل وہ کیلے ہیں نا، دیکھو بیٹے یوں رکھیں گے نا تو یہ وزن سے یا یہ دب کر تو پچک جائیں گے، تو کالا حصہ ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، تو کوالٹی نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا اگر یہ ٹھیلے والے بیچنے والے تو یوں رکھتے ہیں، اگر غور کرے تو یوں رکھتے ہیں۔ تو اچھا، پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا، قبلہ اس طرف ہے نا، تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے۔ احترام کی نیت کریں گے، کعبے کی تعظیم کی، تو ان کا ثواب بھی ملے گا۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ کر کے کیلے لیے جیسے اس کو ڈوری میں ڈال کر کہیں مطلب مناسب جگہ پر لٹکا دیں۔ دعوت اسلامی سے پہلے جب نہیں تھی نا تو بکثرت یہ دم کرتا تھا پڑھ کے، تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بڑا اہم پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ غالباً فارسی میں بولتے ہیں، غالباً پرندہ، اردو میں پرندہ ہی بول چال ہے، عام بول چال میں۔ میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے، دوسری آنکھ بند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہن لے، کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا نا تو اب اس کو نیند آ جائے گی، سویا پڑا رہے۔ اور نیند اڑانی ہو تو یہ آنکھ پہن لے، اب یہ کروٹیں لیتا رہے، اس کو نیند نہیں آئی۔ یہ میں نے پڑھا ہے، حیات الحیوان میں اس کی کافی تفصیلات مل سکتی ہیں۔ پہلے اس طرح نہیں تھا۔ الیاس قادری صاحب کی طبیعت میں اس طرح کی ریاکاری، دکھلاوا، تکبر سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔
जिस इलियास कादरी को मैं जानता हूं, मेरी 1999 में उनसे उनके घर पर मुलाकात भी हुई थी कराची में। उस वक्त नया नया वो डी ट्रैक होना शुरू हुए थे। ये मंजर तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उनकी जो मरकजी मस्जिद है कराची के अंदर, मदरसतुल मदीना और +7 मस्जिद, उसमें सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वो गालिबन लुकाट या खुरमानी खा रहे थे, तो उसकी गुठली निकलती थी तो वो यूं करके ना अवाम में फेंकते थे, और अवाम उसको इस तरह कैच करने के लिए तबर्रुक के तौर पर आगे आती थी जैसे कुत्ते किसी हड्डी के ऊपर पड़ते हैं और आपस में छीना झपटी वाला मामला करते हैं। उनके बाल तबरकुन तकसीम करने की वीडियोस तो आप लोग देख चुके हैं। हमारे जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, जो खुद उनके फिरके से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उनके काफी सारे मामलात खोल कर बयान किए हैं। वो आप वीडियोस उनके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। हमने तो खैर ये लाइव मंजर देखा हुआ है। उस वक्त वो नया नया इस रास्ते से हटना शुरू हुए थे। उससे पहले तक उनकी हालत ये थी कि अगर कोई शख्स गलती से भी किसी इज्तिमा में, किसी प्रोग्राम के अंदर इलियास कादरी जिंदाबाद का नारा लगा देना और उनके कानों तक पहुंच जाए तो वो स्पीकर में कहते थे इलियास कादरी मुर्दाबाद। ये मैंने खुद सुना हुआ है और इसकी कई एक रिकॉर्डिंग्स मौजूद है पुरानी, जब ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है। जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते। तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है? यानी देखें, जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है। इतनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों भी ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं ऐनकें किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, और सब कहानियां फ्रॉड है, झूठ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आया है और तिरमिज़ी में और हज़रत फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में, ये भैया हमें ना लिख के भेजा करें, ठीक है ना। इससे सिवाय इसके कुछ नहीं होता कि हम उसे पढ़ के फौरी तौर पर ये हदीसें हमने पढ़ी भी हैं, पढ़ाई भी। हम कई बार अर्ज कर चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक अहले हदीस से नहीं है। पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी। हमें नहीं समझ में आती उम्मत में जो 1500 साल से हमारे बुजुर्गों ने दीन को समझाया, आखिर उसको छोड़ के अब नई नई बातें और नए नए फिरके बनाने की जरूरत तुम्हें क्या पड़ी है? और कोई काम नहीं रह गया। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है? क्या हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए? वलियाजुबिल्लाह। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है? क्या हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए? वलियाजुबिल्लाह। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है? क्या हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए? वलियाजुबिल्लाह। हम साफ लफ्जों में कहते हैं जो आदमी बगैर उसातिज़ा के हदीस पढ़ता है वो गुमराह हो ही जाता है। इसी से पता नहीं है कि हदीस से मतलब क्या। अच्छा, ये इनका एटीट्यूड क्या अपने बाबों के फतवों के बारे में कभी होगा? कभी ये मुफ्ती कहेगा कि मैं बहिश्ती ज़ेवर के मुझे वाले ना भेजा करो, मैं बहिश्ती ज़ेवर पढ़ूं और गुमराह हो जाऊं, मैं फतावा अलमगीरिया पढ़ूं और गुमराह हो जाऊं? ये क्या हर वक्त तुमने फतावा शामी, रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार लगाई होती है, ये मुझे ना भेजा करो? कभी ये बात करेंगे? तो इससे आप अंदाजा लगाए कि ये अपने बुजुर्गों को जो रिस्पेक्ट दिए हुए हैं ना, वो पैगंबरों से बढ़ के दिए हुए हैं। आपको तो सुनाते हैं ना आयत ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, इससे आपको इस्मत मुस्तफा तो बताते हैं। ये नहीं बताते कि जो शख्स रसूलुल्लाह के हुजूर आवाज बुलंद करे वो तो गुस्ताखे रसूल, और जो हुजूर की बात का मजाक उड़ाए वो उस तो बड़ा गुस्ताख। और वो ये सारे हैं कट्टर ठेठ अनवी। तुसी लोग हदीस हदीस तेरे सामने हज़रत उमर बैठे हो तो मैं देखता हूं कि वो फिर कि या रसूलुल्लाह इजाजत दे। तुम लोग हो गुस्ताखे रसूल, हदीसों का मजाक उड़ाने वाले। ये रसूलुल्लाह की उससे बड़े लेवल की तौहीन है कि कोई हुजूर की मौजूदगी में आवाज बुलंद करे। उससे बड़ी तौहीन यह है कि कोई हुजूर की बात का मजाक उड़ाए। वो तो साहबा का नहीं अल्लाह ने बर्दाश्त किया, हालांकि उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। अब मुझे बताएं कि वो अल्लाह ऐसे लोगों के साथ क्या करेगा जो नबी इस्लाम के फरामीन का यूं मजाक उड़ाते हैं, हदीस 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 पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। ओए तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदा इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो और बात ये करते हो कि हदीसें हमें सुनाओ हम गुमराह हो जाएंगे। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
पक्के गद्दार हो। इसीलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हाँ, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। हदीसें ना सुनाओ मैं तनु सिफतावा शामी सुनाइए दुरे मुख्तार के आशिया रद्दुल मुख्तार, जिसमें लिखा है कि अगर आपको यकीन हो कि अपने खून और पेशाब से सूरह फातिहा माथे पर या तावीज लिखने से शिफा हो तो आप कर सकते हैं। ए तेरे बाबे ने कट्टर ठेठ अनफी बोल के तेरे बाबे ने गुस्ताखी की है। तो ज्यादा पुराना नहीं है, 1252 हिजरी में ये मरा है इब्ने अब्दीन शामी। किसी की जरूरत नहीं कि इख्तिलाफ कर जाए, ये इनको लिख के भेजे ना। हाँ, इसको पढ़ के कोई गुमराह नहीं होता। हदीस को पढ़ के गुमराह होते हैं इसलिए कि हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, क्योंकि ये तो हुए कट्टर ठेठ हनफी। इज्जतें अवेल कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे खा रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा वजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तौहीन उन्हीं की कर रहे हैं। तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके जो ये मेकअप नुमा चेहरे हैं ना, अजीबो गरीब किस्म की गोने पहन के और बड़ा अपना रोब डालते हैं, गर्म तौलिए इनके मुंह के ऊपर फेरें ताकि इनके असली चेहरे आप लोगों को पता चले कि ये दुश्मन है अल्लाह और उसके रसूल के। ज़ाहिर है वो तो उन्होंने खुद ही बोल के कहा कि हम 1500 साल से अपने बुजुर्गों, और केड़ा 1500 साल तो तुम्हारे बुजुर्गों का दीन है ना, आपके अकीदे कुरान से साबित, ना आपके बुखारी मुस्लिम से साबित, केड़ा 1500 साल, 1100 साल क्या करो, और नाल हदीस सुनाया करो बुखारी मुस्लिम की कि सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर साहबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का, उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। और तुसी तो बाद वाले हो जी, पुराने बुजुर्गों को नहीं मानते, पुरानों के तो आप मुनकिर हो, तुम लोग दरमियानों को मानते हो। पुराने वैसे थे जैसा कि हम हैं। कौन से कीदे तुम्हारे कुरान और सुन्नत से साबित है? मैं कट्टर ठेठ अनफी, केड़ा अनफी, कट्टर अनफी देवबंदी। 1866 में देवबंद मदरसा बना, 1500 साल नहीं सरकार, 150 साल पहले तुम आए हो दुनिया च। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को देवबंदी नहीं कहता था, और 1904 के अंदर आला हजरत ने बनाया मंजिल इस्लाम बरेली का मदरसा। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बरेली नहीं कहता था। कहानी कहानी बंद करो। और फिर आप है कट्टर ठेठ हनफी, केड़े हनफी हो, अल मोहम्मद आले या उसामुल अरमैन आले, आन दाड़ थले हो तो ये दोनों हनफी हैं जी। ए दसना के विच अलाली हनफी केड़ा है? अलाली यानी वो मैं रूहानी तौर पर ही बात कर रहा हूं, वो दूसरा आउट ऑफ वेडलॉक की तरफ ना चले जाइएगा, ठीक है? और कोई फरोई इख्तिलाफ नहीं, सरकार जमीन आसमान का फर्क है, एक दूसरे की तकफीर है। तो कौन सा कट्टर ठेठ हनफी है कि जो करोड़ों बरेलियों को काफिर और मुशरिक समझते हैं, या तू वो कट्टर ठेठ हनफी है जो करोड़ों देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल समझते हैं, यानी काफिर ही हो गए ना। तो ये जनाब अपने बुजुर्गों के बारे में कभी ये जुमले नहीं बोलेंगे कि हमें हदीसें ना बताएं। अल्लाह के नबी इस्लाम यार तारे बाबे तो नहीं छोड़ के गए। हाँ, बुखारी मुस्लिम दोनों में है, नबी इस्लाम हर खुतबे से पहले कहते थे अम्मा बाद फइन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। कुछ अल्फाज तिरमिजी के और नसाई के भी। आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे हिदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बदतरीन काम वो है जो दीन में नए जारी किए जाए, और वो काम बिदतें हैं। तमाम बिदतें गुमराहियां हैं और तमाम गुमराहियां जहन्नम में ले जाने वाली हैं, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और ये कह रहे हैं कि जी हदीसें पढ़ के गुमराह होंगे। नबी इस्लाम तो हमें यही कह के गए। सही मुस्लिम में हजरतुल वदा का खुतबा निकाल के देखे, नबी इस्लाम ने फरमाया मैं अपने बातों में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं जिसे मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम शरीफ में सिर्फ किताबुल्लाह का जिक्र है। सुन्नत को मानना किताबुल्लाह ही को मानना है। मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह। अलबत्ता एक हसन दर्जे की रिवायत अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, वहां पे किताब और सुन्नत दोनों का जिक्र है कि इन दोनों को मजबूती से पकड़ लेना। कोई बाबा पकड़ने के लिए नबी इस्लाम ने नहीं फरमाया। हालांकि नबी इस्लाम के पास तो वो बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे। कौन? सहाबा इकराम, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन। लेकिन जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई तो नाज़रीन खैर आपने रब्बुल आलमीन के कुरान पाक की तिलावत सुन ली। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर अपने महबूब अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आज के दिन आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों को भी इत्माम कर दिया। अगर पसंद किया तो आपके लिए दीन इस्लाम को ही पसंद किया। अब नाज़रीन दीन के अंदर इजाफा करने की जरूरत भी नहीं है, कमी करने की जरूरत भी नहीं है। और सहीह बुखारी की ये हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पे खड़े होंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आएंगे, उनके चेहरे, उनके जिस्म यानी उनके अज़ा वुजू के कतरात की वजह से, वुजू के निशानात की वजह से चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अब ये उम्मती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दरमियान के अंदर
دیوار کھڑی کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ یہ تو میری امت ہے. فرمایا نہیں اے میرے محبوب یہ آپ کی امت نہیں, یہ تو آپ کے بعد دین کے اندر اضافہ کر کے آگے آپ کا انہوں نے دین اسلام کا بیڑا غرق کر دیا. جو ہم نے آپ کے اوپر شریعت نازل فرمائی تھی, دین نازل مکمل کیا تھا, اس کے اندر انہوں نے بدعات ملائی تھی. تو ناظرین بڑے دکھ والی بات ہوتی ہے. تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے لو جی پھر کیا ہوا, بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے, یعنی چنگی بدعت بھی ہوتی ہے. ناظرین بدعت کوئی بھی ہو, بدعت ہر بدعت ہی گمراہی ہے. تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے, اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.